جو بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں ان کے سر پر دستار باندھا جاتا ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ اسی کڑی میں آگامی 2 مارچ 19 شعبان سنیچر کے دن بعد نماز عشاء جلسہ دستار بندی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں 22 حفاظ کے سر پر دستار باندھا جائے گا۔ بتا دیں کہ یہ مدرسہ دارالعلوم قادریہ حبیبیہ ہاوڑہ کے 42 نمبر نندو گھوش روڈ کفور گلی پلکھانہ میں منعقد ہے۔ دستار بندی کے موقع پر دوسرے ملکوں سے بھی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ جلسے کی سرپرستی مدرسے کے فاؤنڈر علامہ شمیم الزماں قادری فرمائیں گے۔ اس خاص موقع پر مدرسے میں پریس کانفرنس کر تمام باتوں کی جانکاری دی گئی اور عوام سے اپیل کی گئی کہ آپ ضرور آئیں اور حفاظ کا حوصلہ افزائی فرمائیں، ساتھ ہی ثواب دارین بھی حاصل کریں۔ بتاتے چلے کہ اس جلسے دستار بندی میں فرانس کے اسلامک اسکالر شیخ عمر الفاقہانی لبنانی بھی شامل ہوں گے اور ان کے علاوہ بنگلہ دیش سے شیخ حامد رضا مرشدی، مفتی آصف مجددی، سخاوت حسین برکاتی، عاشق حسین چشتی، شہریار رضا خان، محمد بلیغ الزماں سمیت کئی علماء شریک ہوں گے۔ اس دوران شمیم الزماں قادری نے کہا کہ آپ تمام لوگ ضرور آئیں اور نیک کام میں حصہ لیں۔ اس افسر پر مدرسے کے سیکریٹری و دیگر مدرس حضرات موجود تھے۔ انہوں نے کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام دارالعلوم قادریہ حبیبیہ پلکھانہ ہاوڑہ کا 1 مارچ اور 2 مارچ کو عظیم پیمانے پر ہو رہا ہے۔ 1 مارچ کو بعد نماز مغرب خواتین کے متعلق پروگرام ہوتا ہے اور وہ بھی بہت عظیم جلسہ KGN ہال میں رکھا جاتا ہے۔ اس جلسے میں بھی خواتین کی عظیم بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے۔ اور 2 مارچ کو دارالعلوم قادریہ حبیبیہ سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں، ختم بخاری شریف کا پروگرام بعد نماز ظہر ہوتا ہے۔ ختم بخاری شریف کے لیے قنوج اتر پردیش کے شیخ الادب حضرت علامہ آصف مجددی صاحب الجامعۃ الاحمدیہ قنوج سے تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زبان فیض ترجمان سے ختم بخاری شریف کا عظیم پروگرام منعقد ہوگا۔ اور بعد نماز عصر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک شریف اور دیگر تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ بعد نماز مغرب ختم قرآن عظیم کا پروگرام ہوگا اور بعد نماز عشاء جلسہ دستار فضیلت کا بہت عظیم پیمانے پر پروگرام ہوگا، جس میں ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ بیرون ملک کے خصوصاً فرانس کے بہت عظیم مفکر اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا الشیخ عمر الفاقہانی تشریف لا رہے ہیں، فرانس سے وہ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آمد 1 مارچ جمعہ کو صبح اتر رہے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بنگلہ دیش کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا الشیخ حامد رضا مرشدی صاحب یہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بھی عربی زبان میں، بغلا زبان میں، انگلش زبان میں ان کا بہت ہی عظیم پیمانے پر خطاب ہوتا ہے۔ بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب کی ہے، جو ہمدرد یونیورسٹی دہلی سے تشریف لا رہے ہیں، جو ڈبل PhD ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بہت ہی عظیم خطاب ہوگا۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا شہریار صاحب جو ہندوستان کے بہت عظیم خطیب و واعظ ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ عاشق حسین صاحب چشتی جو کھڑگپور کے رہنے والے ہیں، ان کے علاوہ خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا بلال احمد صاحب نوادہ بہار سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مبلغین اور مفکرین و خطبہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ صبح نماز فجر سے قبل تک چلے گا، اور جس میں رات کے آخری حصے میں فارغ ہونے والے 22 علماء حفاظ قراء کی جماعت ہے، جن کے سروں پر دستار باندھی جائے گی اور ان کو سند فضیلت اور سند قرأت اور سند حفظ سے نوازا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے میں بہت عظیم پیمانے پر
लोगों का मजमा इकट्ठा होने की उम्मीद है। ये प्रोग्राम आपका सालाना होता है? ये प्रोग्राम हमारा सालाना है। ये प्रोग्राम सन 1986 से शुरू हुआ है। सन 1986 से जो अब तक मुस्तकिल चल रहा है। कोरोना के ज़माने में 2 साल ये प्रोग्राम नहीं हो सका, वरना मुस्तकिल ये प्रोग्राम होता है। पहले हुफ़ाज़ के सरों पर दस्तार बांधी जाती थी। 1986 से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ। 1984 31 अक्टूबर को ये मदरसा शुरू हुआ और उसके बाद 1986 में हिफ्ज़ वालों की दस्तार हुई। फिर तब से ये प्रोग्राम चलता जा रहा। 1994 से उलमा के सरों पर दस्तार बांधी जा रही है। यहाँ से जो है आलिम और फाजिल 1984 से निकल रहे हैं और हाफिज़ों की जमात 1986 से निकल रही है। ये जो कुर्रा है या हाफिज़ है, ये इनकी क्या तादाद बढ़ रही है ना, जो है वही है? नहीं, तादाद तो बढ़ ही रही है, लेकिन 2 साल जो कोरोना का मामला हो गया उसकी वजह से ये 2-3 साल थोड़ा मामला कमज़ोर हुआ, लेकिन माशाल्लाह इस मर्तबा तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या क्या इंतजामात किए गए हैं बैरूनी मेहमान जबकि यहाँ आ रहे हैं? हाँ, उनके रहने के लिए हमारे सामने की ये बिल्डिंग है और वो पूरी बिल्डिंग खाली है और इंशाअल्लाह ताला उसमें मेहमान रहेंगे। हमारे ये फ़िरोज़ भाई हैं, इनका घर है, ये मदरसे के सेक्रेटरी हैं और हमारे और मदरसे के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता और मुआविन हैं। ये हमारे मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं, ये मदरसे के बहुत ही एक अच्छे और जांबाज मेंबर हैं और भी दीगर सभी लोग हैं। मोहल्ले वालों का पूरा ताउन रहता है और मोहल्ले वाले के ताउन से ही मदरसा होता है, जिसमें अच्छी तादाद में लोग शिरकत भी करते हैं और अच्छे अंदाज से लोगों की मेहमान नवाजी हमारे मोहल्ले के तमाम लोग और खुसूसन नौजवान लोग बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं। ये हमारे अब्दुल वहाब साहब हैं, ये घोसी हैं, दूध से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये लोग जाबाज मेंबर हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज से इन लोगों का रवैया मेहमानों के साथ रहता है। इस मदरसे में इस मदरसे में हिफ्ज़ के अलावा और आलिम की भी पढ़ाई? हिफ्ज़ के अलावा इसमें आलिम, फाजिल, कारी सबों की तालीम होती है। असरी तालीम के लिए क्या कुछ? असरी तालीम के लिए जो है इंग्लिश का भी इंतज़ाम है और उसके अलावा जो है ये हिसाब किताब का भी इंतज़ाम है। ये मतलब अच्छे तरीके से बच्चों की पढ़ाई इंग्लिश की भी की जाती है। असरी तालीम की अच्छी तालीम का इंतज़ाम हो रहा है। उलमा के लिए भी दस्तारबंदी होती है? हाँ, उलमा के लिए दस्तार होती है। आलिम फाजिल के सरों पर दस्तार बांधी जाती है, उनको सनद से नवाजा जाता है। रमज़ान के बाद से जो है इस बार के प्रोग्राम की खुसूसियत ध्यान का भी एहतमाम। जी, इस बार के प्रोग्राम की खुसूसियत क्या है? इस बार के प्रोग्राम के लिए खुसूसियत यह है कि हमने दुनिया इस्लाम की एक अजीम शख्सियत जो फ़्रांस से आ रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना उमर अल फ़ाकिहानी, ये फ़्रांस से आ रहे हैं। ये फ़्रांस की बहुत अजीम शख्सियत हैं, ये आ रहे हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश से हज़रत अल्लामा मौलाना शेख हामिद रज़ा मुर्शिदी साहब आ रहे हैं। ये और इसके अलावा दीगर भी आ रहे हैं। तो और हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतें जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सैयद फजला चिश्ती साहब आ रहे हैं जो डबल PhD हैं। इनका खिताब असरी लिहाज से भी बहुत ही उम्दा होता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ये कि ईद बाद, क्योंकि ये जो मदरसे हैं मदरसों का प्रोग्राम ईद बाद से चलता है। निज़ाम जो है पढ़ाई का ईद बाद से चलता है और शब बारात के बाद ये जैसे 2-3 रोज़ बाद मदरसा बंद होता है। वही जैसे दफ्तार के बाद मदरसा बंद हो जाता है, लड़के अपने घर चले जाते हैं, मुदर्रिसीन भी घर चले जाते हैं और फिर ईद की 10 तारीख से मदरसा शुरू होता है। तो उस वक्त हम नए तरीके से अब और भी असरी तालीम का इंतज़ाम करने जा रहे हैं। फिलहाल कितने तालिब इल्म हैं? 150 तलबा तो खाने पीने वाले रहते हैं जिनके मतबख का इंतज़ाम रहता है, जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं 150 तलबा, और बाकी जो ये मकामी तलबा तो अच्छी तादाद। तालिबात के बारे में भी आप लोग? तालिबात के बारे में भी हम सोच रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और असली तालीम में मतलब
रेगुलर है या बीच बीच में से कोई टीचर आके पढ़ा? नहीं, रेगुलर है। हाँ, रेगुलर है। उसको और कंप्यूटर वगैरह भी लाने का ऐसा? हाँ, उसका भी है इंतजाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट सेशन से स्कूल क्लास 10th एंड 12th के लिए भी हम इंतज़ाम करेंगे। तो जो बच्चे इस लायक पाए जाएंगे उनको 10th और 12th के लिए तैयार करेंगे। कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको आपको एडवोकेट की भी तालीम दी जा रही है ताकि वो... हाँ, वो इंशाल्लाह धीरे धीरे रफ्तार इंशाल्लाह हम रफ्तार लोगों ने ये सोचा है कि जैसे ये ड्रॉप आउट बच्चे बहुत होते हैं, हिफ्ज़ तो हो जाता है, हिफ्ज़ होता है, आलिम बन जाते हैं असली तालीम की तरफ। तो हम लोगों ने मतलब कि हम और ये मौलाना बलीगुज़मा जो है नौजवान है, स्पीड भी है इनके काम करने में। तो हम लोगों ने ये सोचा है, ये तय किया कि इसके बाद जो लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं हिफ्ज़ बनने हाफिज़ होने के बाद में, तो उनके लिए हम एक इंतज़ाम करेंगे जो वो आफ्टर द हाफिज़ उनको हम मतलब कि एक अलग से मतलब वो करें, इंग्लिश और मैथ और साइंस और ज्योग्राफी का मतलब कि जो भी हो असली तालीम दे, और देने के बाद में क्लास 10 और 12 करने के बाद में उनको कंपटीशन बैठाने का हम लोग एक मंसूबा बना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। ये हमारे बड़े लड़के हैं मौलाना मोहम्मद बलीगुज़मा साहब अज़हरी, जो 6 साल जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़ करके अभी आए हैं। तो इनको मैंने ये तालीम इसीलिए बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर दिलवाई ताकि इनके ज़रिए से मदरसे का निज़ाम असली तालीम के साथ साथ भी खूब अच्छे पैमाने पर हो सके। और पहले तो मैंने मदरसा, हमारे ये सेक्रेटरी साहब हैं, फिरोज़ अहमद सेक्रेटरी साहब हैं, और मोहल्ले के दीगर लोग सबके ताउन से ये मदरसा कायम हुआ। मैंने अकेले ही तौर पर मदरसे को संभाला, इन लोगों का ताउन रहा लेकिन अकेले संभाला था। तो अब जो है हमने इसीलिए इनको जामिया अज़हर भेजा ताकि बाहर की दुनिया से ये अच्छी तालीम हासिल करके आएँ तो मदरसे को असली लिहाज से खूब अच्छे पैमाने पर चला सकें। क्या अपील है आपका, आवाम से क्या अपील करेंगे आप? आवाम से हम अपील ये इस वक्त करते हैं कि इस वक्त जो हमारा जलसा पहले तो बरोज़ जुमा 1 मार्च KGN हॉल में जो औरतों का जलसा हो रहा है, बहुत अजीम पैमाने पर होता है। उसमें भी बाहर से मुअल्लिमात आती हैं, आलिमा आती हैं, उनकी तकारीर होती है, इस्लाही गुफ्तगू होती है, और ख़वातीन अहल इस्लाम को अच्छे तरीके से मतलब ये कि इस्लामी और दीनी और मजहबी क़वायद और तालीम दी जाती है, बताया जाता है। तो ख़वातीन इस्लाम से भी गुजारिश है कि वो KGN हॉल में 1 मार्च को बाद नमाज मगरिब कसीर तादाद में तशरीफ़ लाएँ। और जो हमारा जलसा 2 मार्च को हो रहा है, इस 2 मार्च के जलसे में बाद नमाज ज़ुहर ख़त्म बुखारी शरीफ का जो प्रोग्राम है उसमें लोग बरकत के लिए और रहमत के लिए शिरकत करें, और जो आखिरी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है उसकी जो फजीलतें और बरकतें हैं उसे हासिल करें, और फिर बाद नमाज अशर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीफ और दीगर तबर्रुकात की ज़ियारत करें। और बाद नमाज इशा खुसूसी तौर पर जो जलसे दस्तार फजीलत हो रहा है उसमें लोग कसीर तादाद में शिरकत करें और उलमा की बातें सुनें कि जो है हम लोगों को किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और आपसी भाईचारगी और मोहब्बत व अखलाक किस तरीके से लोगों के साथ पेश करना चाहिए, ताकि जो है आपस में मोहब्बत का दौर चले, आपस में यकताई हो, और सब मुल्क में जीने का सही तरीका कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान हम सिर्फ तनहा नहीं है, हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, सबों के साथ किस तरीके से यकताई और मोहब्बत का बर्ताव होना चाहिए, किस तरीके से अखलाकी बर्ताव होना चाहिए, वो उलमा की ज़बानी सुन करके आपस में इस कोशिश में आगे बढ़े। 1984 में स्टार्ट हुआ था ये मदरसा बताया। उसके बाद से ये मदरसा चल रहा है, इस्लामी तालीम हो रहा है, और देखा ये गया है कि लोग यहाँ पर जो जी हैसियत लोग जो है वो भाग रहे हैं मतलब कि इंग्लिश मीडियम की तरफ, असली तालीम की तरफ। उनका जो कंसेप्ट है ये कि मदरसा में सिर्फ मतलब कि मजहबी तालीम दिया जाता और कुछ नहीं, और इससे कुछ आगे होगा नहीं। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बदलना चाह रहे हैं, इस कंसेप्ट को बदलना चाह रहे हैं कि हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि मदरसा जो आज से बहुत पहले 100 साल पहले जिससे बड़े बड़े लोग मतलब कि निकले, यहाँ से स्कॉलर लोग करके निकले हैं, उस टाइप का मदरसा हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं कि मदरसे के साथ साथ असली तालीम भी हो
यहाँ से लोग साइंस करके निकले, यहाँ से कॉमर्स हो, यहाँ से मतलब कि IPS और IAS का भी लड़का यहाँ से निकले कि वो मदरसा से पढ़कर और असली तालीम हासिल कर करके यहाँ पर इस तरह से वो IPS और IAS का और मतलब कि आपका लॉयर बने, जो बने, जिस तरह मतलब एक समाज में मतलब एक मुकाम हासिल करे मदरसे का, मतलब उस कंसेप्ट को हम लोग लाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग जगह भी देख रहे हैं यहाँ पर। अभी तो फिलहाल 1984 से इस मस्जिद में चल रहा है ये, लेकिन उसके लिए एक जगह चाहिए, क्योंकि हमको एक हॉस्टल भी चाहिए और मतलब ये, तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मौलाना का हाथ रहा, मौलाना का कोशिश रहा और हम लोगों का मतलब की कोशिश रहा, तो वो भी जगह हम लोग कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हम लोगों का कंसेप्ट है कि आगे इन फ्यूचर हम लोग इस टाइप का मदरसा करें कि मदरसा का जो कंसेप्ट लोगों का है कि आज जो भी लड़का बदमाश होता है घर में तो उसको मदरसा में दे दिया जाता है, और अच्छा पढ़ने वाला लड़का है तो उसको इंग्लिश मीडियम में दिया जाता है। तो वो कंसेप्ट लोग बदले कि आप यहाँ पर मदरसा में दें, यहाँ असली तालीम भी हो और साथ ही साथ यहाँ पर मजहबी तालीम हो, जो आज बेरवा रवी है यहाँ पर हम लोगों के कौम में, ये ख़त्म हो। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।